now making CGC University as an AI enabled university. जो Gen Z और ये जो Gen Alpha है ना, they are far better than the previous generations. केवल ये वही काम पसंद करते हैं जिसमें एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन है. They don't want to waste their single minute of time. आप प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं, आप अपना स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, या गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं, या फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आओ ना यार, पजामा टी शर्ट में आओ, कोई दिक्कत नहीं है. आराम से आओ, चाय पीते हुए आओ, हाथ में कॉफी का मग लेके आओ. तुमको कोडिंग करनी है, बैठो, अपनी कॉफी मग रखो टेबल पे, लैपटॉप ओपन करो, लर्न करो. आपके पास एक मैंने ट्रेनर दिया हुआ है, आपको मैंने मेंटर दिया हुआ है. जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसे सीखो. Hello everyone and welcome to yet another episode of the College Dunia podcast series. Today we have with us Dr. Vinay Goyal, who is the Vice Chancellor at CGC University Mohali. Hello sir, welcome to the podcast. नमस्कार. Sir, I think आप यहाँ पे 2 years you have come here and आप ही के ड्यूरेशन में, आप ही के टेन्योर में हम गए हैं CGC जंजेरी से लेकर अब now the new name which is CGC University मोहाली. ये यूनिवर्सिटी टैगलाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए कि ये एक यूनिवर्सिटी स्टेटस जो आपको मिला है, व्हाट डज दैट मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये जो CGC यूनिवर्सिटी मोहाली है, इट इज हैविंग ए legacy of 25 years. ओके. It started with a Chandigarh group of colleges year back in 2001 by the founder chancellor of this university, Sardar Raspal Singh Ji Dhaliwal, who recently got an award from Japanese government, the Father of Education Award. It's a very prestigious award he received. Right. Because he is serving a lot into this education industry. Wow. Now, from 2012, CGC Jhanjeri got established as an college campus. Right. So it's a group of colleges basically. Here we have engineering college, here we have management college, here we have pharmacy college, here we have the law college. Right. Now, the major problem at that point of time we were facing is that curriculum was fixed by the affiliating universities like Right. Punjab Technical University, IKG, PTU, Punjab University Patiala. So since you know that CGC Jhanjeri is having its strong connect with the industry since 2001. Right. It's known for its placement and industry connect. So we were capturing a lot of industry feedback that what exactly the curriculum should be, what should be the content, what should be the delivery methodology for the students. Now, what is the meaning, what the student value add to the students they'll be getting. So the student will be getting the value that now they will be having the industry ready curriculum. Okay. They will be experiencing that what exactly the delivery of content should be there at par with the industry. Okay. So, and how we can make them industry ready. So, keeping all these factors into mind, now CGC University Mohali comes into the picture. स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी बदल गए हैं. जेनजी जो है वो शायद आपके जनरेशन के, मेरे जनरेशन के भी लोगों से अलग तरीके से थोड़ा पढ़ाई करना चाह रहे हैं, या फिर पढ़ाई हम ये सोचते हैं पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं. तो आपका ये जो कॉर्पोरेट वाला एक्सपीरियंस है और आपका जो यूथ फोकस्ड एक्सपीरियंस है, व्हाट हैज़ दैट बिन लाइक? क्या चेंजेस आ रहे हैं रियल मायने में? हम जानना चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकता है. देखिए, मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ. सबसे पहले तो आपने सुना होगा, बहुत सारे बुजुर्गों से सुना होगा कि आज का बच्चा केयरलेस है. मैं ऐसा नहीं मानता. जो जेन जी और ये जो जेन अल्फा है ना, they are far better than the previous generations. Okay. In what terms it is far better? Because they do only that work which is actually creating the values. Right. केवल ये वही काम पसंद करते हैं जिसमें एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन है. ऐसा रैंडम काम नहीं करना चाहते. They don't want to waste their single minute of time. Right. तो आज मैं अगर बच्चे को क्लासरूम में मुझे बिठाना है, मुझे उसको पढ़ाना है, मुझे उसको लर्निंग करानी है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि मुझे उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा. करेक्ट. और इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टेल देम दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड. आपको क्या प्रिपेयर करना और किसके लिए प्रिपेयर करना है. Right. आप प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं,
आप अपना स्टार्टअप लगाना चाहते हैं या गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं या फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वंस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली हिज थॉट प्रोसेस इज, on the basis of that, the very first thing is based on the industry feedback. We design our curriculum. Okay. As I've already told that we are having a legacy of 25 years and we are having a strong industry connect. Correct. So on the basis of those feedback which we are collecting from the industry, first of all, we create our curriculum. Okay. Aspect number one. Huh. Point number two is that what is the right delivery methodology? Okay. Now, let me give you the example. Say, for example, if I'm talking about the problem solving ability through coding. Okay. So, this problem solving ability through coding can have two approach. One grassroots approach, other one can have the top down approach. Okay. So, usually we apply the top down approach. Okay. Like कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, हाँ. इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आपको सॉल्यूशन निकालना है. Right. अब सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको व्हाट स्किल सेट यू विल बी रिक्वायर. Correct. आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या लर्न करना है. यू विल लर्न दैट, यू राइट द कोड एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. Correct. दिस इज वन अप्रोच यूजुअली वी आर अडॉप्टिंग हियर. हाँ. सेकंड में आपको कुछ और एग्जांपल्स, जैसे अब मैं बात करता हूँ लॉ स्टूडेंट्स की. हाँ. अब लॉ स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी क्लास में पढ़ना एक अदर एस्पेक्ट्स है. Correct. बट थ्योरी तो सीख के आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना. हाँ. कोर्ट के अंदर आपको खड़ा होना है, राइट टाइम पे बात करना है, एक्सप्रेस करना है, उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस. अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू रिक्वायर. तो हम बच्चे को यहाँ पे मूड कोर्ट प्रैक्टिसेस देते हैं. मूड कोर्ट में एक इन्वायरमेंट देते हैं, प्रीवियस केस देते हैं उनको, ताकि अपोनेंट और फेवर दोनों खड़े हों. यूजुअली जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हम इनवाइट करते हैं. रिसेंटली हमने श्री राजेश बिंदल जी को इनवाइट किया था. उससे पहले संदीप महेश्वरी जी को हमने इनवाइट किया था. सुप्रीम कोर्ट के जज, अदर जुडिशरी मेंबर्स यूज्ड टू कम हियर टू टीच आवर स्टूडेंट्स, टू टेल देम व्हाट एग्जैक्टली इज द कोर्ट एनवायरनमेंट. आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे अपने केसेस के बारे में बात करनी है, कैसे आपको अपना ड्राफ्टिंग रेडी करनी है. सो वी गिव देम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हियर. Wow. In the similar way, I was talking about the forensic science students, है ना. Right. Forensic science students का मतलब ये नहीं कि क्लास में उसने केमिकल लर्न कर लिए, उसने क्राइम सीन कैसे होगा वो लर्न कर लिया. नो, वी आर गिविंग द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हियर. हम बाकायदा एक फेक क्राइम सीन क्रिएट करते हैं कैंपस के अंदर. Okay. बच्चे वहां से सैंपल कलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बेस पे रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं. सो द इंटायर डिलीवरी मेथोडोलॉजी इज the experiential based learning. Got it. So this is what exactly we are making our Gen Z to learn. That okay, this is the aspect you are going to learn and this is the way you are going to learn. Right. One more I just wanted to add here. Gen Z एक डिफरेंट तरह से बिहेव करता है. Correct. तो Gen Z के लिए अब हमने क्या किया, एक 9 to 5 तो है, ठीक है, उसकी एक अप्रोच है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब बच्चे का इंटरेस्ट पैटर्न क्रिएट नहीं होता. मान लिया 9 to 5 में उसका इंटरेस्ट पैटर्न क्रिएट नहीं होता या उसको कोई एडवांस लर्निंग में जाना है. हाँ. तो मैं हमेशा कहता हूं, तो 9 to 5 के लिए तो आप सिर्फ अपनी जरूरत के लिए पढ़ते हो. हाँ. लेकिन 5 to 9 में आप एक्सेलेंस के लिए पढ़ते हो. करेक्ट. और खुद के इंटरेस्ट के लिए मुझे कुछ इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हो. नया लर्न करना है. बहुत सारी हमने इवनिंग क्लासेस ऑन की हुई हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, चाहे मैं फार्मेसी के स्टूडेंट्स की बात करूं, चाहे मैं लॉ के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं. तो जो ये क्लासेस है ना 5 to 9 वाली, हाँ, उसमें वो बच्चा क्लास में आता है जो एक्चुअल में सीखना चाहता है, जो उसको लगता है कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है जिंदगी में. तो उस बच्चे के लिए भी हमने वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हुई हैं वहां पे. ताकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ये फील करे कि नहीं भाई अब क्लास ओवर तो अब मैं कैसे सीखूं. राइट. तो वी हैव क्रिएटेड 5 to 9 एनवायरनमेंट एज वेल फॉर दैम. अच्छा, और इसमें बेसिकली क्या है कि 5 to 9 क्लासेस में ना ये नहीं है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है, भाई आपको अटेंडेंस के लिए आना है. आओ ना यार, पजामा टी शर्ट में आओ, कोई दिक्कत नहीं है. आराम से आओ, चाय पीते हुए आओ, हाथ में कॉफी का मग लेके आओ. तुमको कोडिंग करनी है, बैठो, अपनी कॉफी मग रखो टेबल पे, लैपटॉप ओपन करो, लर्न करो. आपके पास एक मैंने ट्रेनर दिया हुआ है, आपको मैंने मेंटर दिया हुआ है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसे सीखो. तो दिस काइंड ऑफ ए कैजुअल अप्रोच यूजुअली वी आर हैविंग इन 5 to 9 क्लासेस. और उसी इन्वायरमेंट में बच्चे की जो एक्सेलेंस है ना वो डेवलप होती है. Wonderful. So, sir, you did mention you mentioned you're preparing students जो बाहर भी शायद जाना चाह रहे हैं.
तो इसी के संदर्भ में आई बिलीव कि आपका एक ग्लोबल मोबिलिटी प्रोग्राम भी है जहाँ पे 50-50 मॉडल पे आप 2 इयर्स उनको एजुकेशन देते हैं CGC यूनिवर्सिटी में, और फिर 2 इयर्स आप उनको प्रोवाइड करते हैं कि वो कहीं बाहर जाके पढ़ सके, राइट? तो इसके बारे में आप कुछ और बता सकते हैं? देखिए 2+2 प्रोग्राम जो है ना, और इसको आप डिफरेंट प्रोग्राम, देयर आर डिफरेंट आर्टिकुलेटेड प्रोग्राम्स है जो हमारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के अंदर है। सो 2+2 में बेसिकली क्या है कि 2 साल, जैसे 4 ईयर का डिग्री है आपका, अगर आपका 4 ईयर का डिग्री है तो 2 साल आप यहाँ पे पढ़ेंगे और 2 साल आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। ओके, So we are having 500+ collaborations with CGC University Mohali. वाओ। So these collaborated university, they open various opportunity along with stipends, along with various scholarship opportunity. The student can apply through them and they can grab these opportunity. Okay. और सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, पर्टिकुलरली मैं पंजाब की बात करूं या जो हरियाणा है, राजस्थान है, नियर बाई स्टेट्स हैं, बहुत सारा बच्चा बाहर जाना चाहता है। करेक्ट, बट दे अडॉप्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे गलत भी अप्रोच राइट, डंकी फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ना बच्चे के विजन के अकॉर्डिंग ना वी आइडेंटिफाई कि ये बच्चा क्या करना चाहता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको उस ग्लोबल प्रोग्राम के लिए तैयार किया जाता है। करेक्ट, कि हाउ यू कैन गो टू दैट ग्लोबल प्रोग्राम्स, आपको क्या लर्न करना है, कैसे लर्न करना है, किस एनवायरनमेंट में लर्न करना है, किस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ आपको लर्न करना है। सो वी प्रिपेयर देम, वी हैंड होल्ड देम स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन टू द डिग्री कंप्लीशन। We entire hand holding we are doing through our international collaboration department. So this is what the 2+2 program is. दैट्स अमेजिंग सर। आई मीन इंटरेस्टिंगली इसी से हम बात करते हैं, तो जैसे आपका एक स्टाइपेंड मिशन है जहाँ पे आप इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जहाँ पे इंटर्न्स को एक हेल्थी सैलरी पैकेज फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 25,000 to 50,000 का आप बोल रहे हैं कि ये आपका टारगेट है। तो सर ये मतलब बहुत ही एम्बिशियस अप्रोच है मेरे हिसाब से। तो हाउ व्हाट डज दिस मीन इन रियलिटी, और ये आप अचीव कैसे करोगे? ये मतलब काफ़ी सारे कॉलेजेस ये क्लेम तो करते हैं, बट व्हाट इज द एक्चुअल अप्रोच दैट यू आर टेकिंग, और स्टूडेंट्स को आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो इसके लिए? देखिए मैं इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे रखना चाहूँगा। देखिए हर तरह का बच्चा CGC यूनिवर्सिटी मोहाली में आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोन पे पढ़ते हैं, राइट, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वेरियस स्कॉलरशिप्स पे पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फीस भी दे पाते हैं, राइट। बट ये तीनों तरह का बच्चा एक चीज़ ज़रूर अपने मन में लेके आता है कि व्हाट शुड आई बी गेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI क्या है मेरा। चाहे वो बच्चा स्कॉलरशिप से पढ़ रहा है, चाहे वो लोन से लेके पढ़ रहा है, चाहे वो अपनी फीस घर से फीस लेके पढ़ रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, ये वाला प्रोग्राम स्टाइफंड और इंटर्नशिप की इसको मैं बात करता हूँ। अब उसके लिए सबसे जो ज़रूरी एस्पेक्ट था कि कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री आपको सैलरी तब देती है, चाहे वो इंटर्नशिप के थ्रू हो, चाहे वो स्टाइफंड के थ्रू हो, चाहे वो सैलरी पैकेज हो, इफ यू आर एक्चुअली एडिंग वैल्यू टू दैट बिजनेस। करेक्ट। इफ यू आर एडिंग 1,000 रुपीज वैल्यू, then they'll be pay you 750 rupees. Correct. So we create the quality within the student so that from the day one they can add value to the organization. Okay. Now for that ये नहीं है कि ये कैजुअल अप्रोच नहीं है, इट्स अ कंप्लीट सिस्टमैटिक अप्रोच हाउ वी प्रिपेयर द स्टूडेंट्स। सो फ्रॉम द डे वन व्हाट वी बिलीव कि देखो 3 चीजें अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पहली चीज द कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स, सेकेंड इज क्यूरियोसिटी, एंड थर्ड वन इज द कॉन्फिडेंस। राइट, 3C पार्ट है ये जो हम बच्चे के अंदर बिल्ड करते हैं। ओके। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टर आता है उसकी मोरल वैल्यूज से। We build that character within the students. We create a 360 degree environment for that students कि आपका डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करना है मुझे। The second part is curiosity. अब curiosity आती है when we give them the exposure, industrial exposure, character building और curiosity। अब तीसरा उसके अंदर मुझे लेके आना कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस ये उसी तरह से है जैसे हम पहले दिन साइकिल चलाना सीखते हैं। साइकिल से 2 बार गिरोगे, साइकिल से चलोगे, 2 बार गिरोगे तभी सीखोगे आप। Right. और साइकिल 2 पहियों पे चलती है,
उसी तरह से जब तक आप अपने हाथ में हैंडल लेके उसकी सीट पे बैठ के पैडल नहीं मारोगे तब तक आप नहीं सीख सकते। Right. उसी थियोरी के बेस पे हमने क्या किया, बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग ड्रिवन सिस्टम हमने क्रिएट किया। मैंने बताया आपको एक सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा एक इकोसिस्टम डिजाइन किया है। उस इकोसिस्टम के अंदर अब पहले दिन से मुझे स्टाइफंड दिलाना है उस बच्चे को। राइट। द मोमेंट व्हेन ही विल बी अप्रोचिंग टू थर्ड सेमेस्टर, अगर मैं एमबीए की बात करूं या मैं बीटेक की बात करूं, द मोमेंट व्हेन दे विल बी अप्रोचिंग टू सेवेंथ सेमेस्टर, तो उस बच्चे के लिए हमने क्या किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने सुना होगा स्मार्ट इंडिया हैकाथन, वेरियस कंपटीशन दे आर ऑर्गेनाइजिंग, और ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से जो स्मार्ट इंडिया हैकाथन्स हैं, ये डायरेक्ट इंडस्ट्री से प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं। ओके। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके दे आर थ्रोइंग दीज स्टेटमेंट्स टू द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू गेट देम सॉल्व। ओके। और जो बच्चा सॉल्व करता है, कई बार इंडस्ट्री उनको ऑनबोर्ड करती है, अदरवाइज दे आर पेइंग हैंडसम सैलरीज, हैंडसम स्टाइपेंड एज वेल। हाँ, जस्ट अप्रोच करने के लिए। करने के लिए, क्योंकि मैं बच्चे को बोलता हूँ भैया तुम्हें कॉफी पीने के लिए नहीं जाना इंडस्ट्री में तुमको जाना है कि अगर वो आपको 100 रुपीज पे कर रहा है, देन यू हैव टू पे बैक एज इन 200 रुपीज। करेक्ट। तुम्हें वैल्यू डबल ऐड करके देना है, Right. ताकि द मोमेंट आपको स्टाइफंड से जब बाहर निकलो तो आपको इमीडिएटली प्लेसमेंट ऑफर्स मिले। राइट। तो सिंस यू मेंशन दैट सर, लाइक वेयर आर वी ऑन दिस गोल करंटली? इस पे हमने जो अमल कर रखा है, या हाउ, व्हाट इज द रिस्पॉन्स दैट वी आर सीइंग फ्रॉम योर कॉर्पोरेट पार्टनर्स इन दिस स्पेस? सी वी आर गेटिंग फंटास्टिक रिस्पॉन्स। अभी WNS है, WNS में हमारा 50 to 100 बच्चा जो हमारा स्टाइफंड पे इंटर्नशिप पे जा रहा है। कैप जेमिनी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा ओपन हो ही चुका है, E&Y हमारा ओपन हो चुका है। नाउ जापानीज गवर्नमेंट, व्हाट जापानीज गवर्नमेंट इज सेइंग दैट यू गिव अस द स्टूडेंट्स, those are trained and those know basic language of Japanese, will hire them. तो आप जापानीज इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड? अब हमने क्या किया है, देखिए बच्चे को हम एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं Right. अपने करिकुलम में। इधर ही कैन लर्न जर्मन, ही कैन लर्न Spanish, he can learn French, or he can learn Japanese. So various languages we are offering to the students. तो starting from semester 1 से हम बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज से एक्सपोज करते हैं, so that अगर किसी बच्चे का जर्मनी में जाने का गोल है, स्पेन में जाने का गोल है, फ्रांस में जाने का गोल है, या जापान में जाने का गोल है, वो लैंग्वेज के वेरियस स्टेजेस को क्रॉस करे। And वो through medium of your curriculum only they can achieve those targets as well. टारगेट्स है ना। जापानीज गवर्नमेंट है, उसका टारगेट है कि भाई स्टार्टिंग में आपका N5 सर्टिफिकेशन होना चाहिए, N3 सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या N4 सर्टिफिकेशन होना चाहिए। Correct. तो वो सारे करिकुलम का ही हमने पार्ट बना दिए, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि मुझे, बेसिकली मैं आपको बताया ना कि CGS यूनिवर्सिटी एक चीज में बिलीव करती है कि आपको एक इकोसिस्टम क्रिएट करके देना है, और जो आप बनने के लिए आए हो ना, क्या बनना चाहते हो, वी विल हेल्प यू। वेरी सिंपल। मतलब ये नहीं कि आपको इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, फार्मासिस्ट बनना है। आप अपने एक मिशन के साथ आते हो किसी प्रोफेशनल कैंपस के अंदर। जब आप एडमिशन लेते हो ना, हो सकता है आपके मन में हो कि मुझे तो डांसर बनना है, हो सकता है आपके मन में कि मुझे तो सिंगर बनना है, हो सकता है आपके मन में हो कि मुझे तो रेडियो जॉकी बनना है, हो सकता है आपके मन में हो कि मुझे ये करना है। करेक्ट। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन बनना है मुझे। तो मेरा काम, बीइंग ए वाइस चांसलर ऑफ दिस कैंपस और आवर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आसिफ धालीवाल जी, हमारा एक ही विजन है और एक ही मिशन है कि इस कैंपस के इकोसिस्टम को इस तरह से डिजाइन करना है कि बच्चा जिस भी सपने को लेके इस कैंपस में आ रहा है ना, हमें उस बच्चे के उस सपना पूरा करने में मदद करनी है। अगेन इट्स नॉट अ कैजुअल, ये पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया गया है कि भैया तुमको सिंगर बनना है, तुमको डांसर बनना है, तुमको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तुमको एजुकेशन में आगे जाना है, तुमको बिजनेस बनाना है, you can do that here. Correct. But sir, based on this, like, you know, whatever we have been talking about, I believe आपका एक BCMED department है, which is the Department of Career Planning and Division. So I believe यहाँ पे आप technical skills, aptitude skills, soft skills, corporate affairs ऐसे करके ये आपका ऐसी कुछ values हैं। तो सर इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि in a real world BCPD जो आपका डिपार्टमेंट है वो कैसे हेल्प करता है, एंड मोर स्पेसिफिकली जैसे स्टूडेंट्स काफी सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, वो एक रूरल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं, वो एक प्रिविलेज्ड सोसाइटी Tier 1 से भी से आ सकते हैं, जहाँ पे को के आइडिया है कि क्या चीजें चल रही हैं अभी। सो आपका ये जो डिपार्टमेंट है ये स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर रहा है, और आप इक्विटेबली ये कैसे प्रोवाइड कर रहे हो ये सारी सर्विसेज? चलो मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपसे इसके बारे में पहले क्वेश्चन करता हूँ।
जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? आपको मेडिसिन देने से पहले पूछता है, सिम्टम पूछता है और फिर वो टेस्ट कंडक्ट करता है। राइट। तो इस टेस्ट के रिजल्ट्स के बेसिस पे वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। उसी तरह से हम सबसे पहले जो बच्चे हमारे पास आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चा आता है। वो विलेज बैकग्राउंड से भी आता है, वो सिटी बैकग्राउंड से भी आ रहा है, वो एक अच्छे स्कूल से भी पढ़ के आ रहा है, वो गांव के स्कूल से भी पढ़ के आ रहा है, वो हम्बल फैमिली से भी आ रहा है, वो रिच फैमिली से भी आ रहा है, मीडियम फैमिली से भी आ रहा है। तो एक डाइवर्स सिस्टम है मेरा पूरा। इस डाइवर्स सिस्टम में लगभग सभी स्टेट्स, इंडिया की सभी स्टेट से मेरे पास बच्चा होता है और 500 प्लस स्टूडेंट्स मेरे पास फॉरेन बच्चा है। फॉरेन, तो दिस इज दी डाइवर्सिटी वी आर हैविंग हियर। वाह। अब इस डाइवर्सिटी को कैटर करने के लिए सबसे जरूरी है, आई नीड टू आइडेंटिफाई कि उस बच्चे का एग्जैक्ट लेवल क्या है एंड फॉर विच लेवल वी नीड टू प्रिपेयर दैट। उसके लिए थ्रू डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट वी कंडक्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। This diagnostic test give us the clear picture that how the students behaves into the communication. उसका कम्युनिकेशन लेवल क्या है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसका टेक्निकल स्किल्स क्या है, उसका एप्टीट्यूड स्किल क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। तो वो सारे एस्पेक्ट्स को जज करने के बाद वी डिजाइन द वेरियस लर्निंग पाथ फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, इन दैट लर्निंग पाथ उसको हो सकता है कि मुझे पर्टिकुलर, जैसे जो बच्चा किसी गांव से आ रहा है, हाँ, मुझे उसका कम्युनिकेशन स्किल सुधारने में इट मे रिक्वायर कि उसको मुझे 2 टाइम्स वो प्रोग्राम करना पड़े। एक बच्चा जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, आई नीड टू एनहांस द टेक्निकल स्किल्स, तो आई नीड टू ऐड दैट टेक्निकल पार्ट इनटू इट। अब किसी बच्चे का डिजाइनिंग में इंटरेस्ट, वेब डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं उसको कोडिंग तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, उसके लिए मैं अलग से डिजाइन करूंगा। किसी बच्चे का डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पाथ में मुझे कैसे लेके जाना है, मुझे उसके लिए क्या क्या सिखाना पड़ेगा। उसको मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, उसको डाटा नॉलेज सीखना पड़ेगा, उसको डाटा एक्सट्रैक्शन सीखना पड़ेगा। तो वो सारा पाथ, लर्निंग पाथ क्रिएट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1। ओके, राइट। देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट वी पुट देम ऑन टू द लर्निंग पाथ एंड वी क्रिएट अ सिस्टम वेयर दे कैन अचीव द। सो हर स्टूडेंट के लिए बेसिकली आपके पास एक डिफरेंट लर्निंग पाथ हो रहा है। एंड जैसे आपने कहा कि आप पहले के सिम्टम सर्च करें कि इनको करना क्या है और उनकी करंट स्टैंडिंग क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव क्रिएटेड अ वेरी डाइवर्स लर्निंग पाथ्स फॉर देम। दैट्स वंडरफुल सर। सर, वन थिंग आई वांटेड टू अंडरस्टैंड वाज कि जैसे इंक्रीजिंगली इन इंडिया देयर इज अ स्टार्टअप फीवर। तो इसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स, they don't want to be employable anymore, but they want to be bosses. They want to be their own bosses. तो I think आपके यहाँ पे एक वेंचर वॉल्ट करके एक इंक्यूबेशन सेंटर टाइप है जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। तो इसके बारे में क्या आप हमें और बता सकते हैं कि इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो रहे हैं एंड व्हाट इज दिस प्रोग्राम इन जय? तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। ये 2 pronged स्ट्रेटजी से ड्रिवन है। पहला, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, विकसित भारत 2047, द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर अर्शदीप धालीवाल, ही होल्डिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री फ्रॉम बर्कले स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। इन दोनों ने क्या किया, अपने विजन को मिक्स एंड मैप किया हुआ है। ओके, यानी कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर अर्शदीप धालीवाल जी, उन्होंने उस 2047 के फिगर को पकड़ लिया है, उस विजन को कैप्चर कर लिया कि अगर ये यूनिवर्सिटी 1% भी उस 2047 विकसित भारत के मुहिम के अंदर अगर अपना योगदान दे पाती है, उस पटल पे अपना पॉइंट रख पाती है, तो दैट विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन इन दैट। राइट। उस चीज को ड्राइव करने के लिए अर्शदीप धालीवाल सर ने क्या किया, वेंचर वोल्ट का क्रिएशन किया यहाँ पे। ओके। और उस वेंचर वोल्ट के अंदर इकोसिस्टम पहले से डेवलप था। उस वेंचर वोल्ट के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग द एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम 2 से 3 तरह से चीजों से मिलकर बना है। पहला है टेक स्पेस,
ओके कि बच्चे को कोई भी स्टार्टअप लगाना है, उसको आपको एक स्पेस चाहिए, आपको एक हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको अपनी कंपनी का नाम कैसे रजिस्टर करना है, आपको उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, आप उसको मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको उसका प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे स्किल सेट या टेक्निकल हेल्प चाहिए, वो कैसे बिल्ड करनी है, मुझे उसकी मार्केटिंग या उसकी कोई भी मुझे स्पेस चाहिए बैठने के लिए, वो सारा इकोसिस्टम डेवलप किया गया वेंचर वोल्ट के अंदर। अभी आप देखेंगे वेंचर वोल्ट के अंदर, तो वेंचर वोल्ट के अंदर बाकायदा हमने उनको स्पेस प्रोवाइड किए हुए हैं, उनको कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड किए हुए हैं, उनको इंटरनेट प्रोवाइड किया हुआ है, उनको क्लाउड स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है, ओह वाओ, उनको आई मीन टू से सर्वर प्रोवाइड किए हुए हैं उनको हमने, उनको कॉन्फ्रेंस रूम प्रोवाइड किए हुए हैं, उनको डिस्कशन रूम्स प्रोवाइड किए हुए हैं कि कोई भी छोटी से छोटी चीज ये के हो गया- बाधा ना हाँ, पड़े। ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड। दूसरा एस्पेक्ट, सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है मेंटरशिप। Right. वेंचर वोल्ट के अंदर हमने 100 इंडस्ट्री मेंटर्स को अपने साथ जोड़ा, जो इस वक्त इधर दे आर एंटरप्रेन्योर्स और उनकी कोई बड़ी इंडस्ट्री रन कर रही है। उन मेंटर्स को हम हर साल अपने वेंचर वोल्ट सीजन्स के थ्रू इनवाइट करते हैं और डायरेक्ट बच्चों को उनको मेंटरशिप के अंडर दे देते हैं। वाओ, दैट मीन्स अब ये आ गया आपका हैंड होल्डिंग वाला कंसेप्ट कि भाई बच्चे को इंडस्ट्री लगानी है, क्या क्या दिक्कतें आएगी, फेलियर भी आएगा उसका, वो उस फेलियर के लिए फंडिंग अगर रुक गया तो मुझे कहाँ से हेल्प मिलेगी, मेरा प्रोडक्ट अगर रुक गया तो कहाँ से हेल्प मिलेगी, मेरी मार्केट कहाँ बनेगी, क्या क्या प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, वो सारी मेंटरशिप मिल जाती है वहां से हैंड होल्डिंग के थ्रू मेंटर से। तीसरा सबसे बड़ा गेम था फंडिंग। राइट, अब फंडिंग के लिए 3 प्रॉम्प्ट स्ट्रेटजी हमने यहाँ पे अडॉप्ट की। पहली, स्टार्टअप पंजाब हमारा मेंटर है। स्टार्टअप पंजाब से हम बहुत सारी फंडिंग लेते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारी दूसरी पार्टनर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग लेते हैं। और तीसरा पार्टनर हमने क्रिएट किया कैंपस खुद और साथ में हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स। ओह वाओ, तो यानी कि हमने क्या किया, 4 वर्टिकल्स खड़े कर दिए बच्चों की हेल्प के लिए। स्टार्टअप पंजाब से आप हेल्प कर सकते हो, अपना स्टार्टअप रजिस्टर करा के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप हेल्प ले सकते हो, हमारे इंडस्ट्रीज से आप हेल्प ले सकते हो, और विद इन कैंपस आप हेल्प ले सकते हो। वाओ, तो इवन हमारे जो एमडी साहब हैं, उन्होंने 1 करोड़ का फंड वेरी स्पेसिफिकली इस चीज के लिए रखा हुआ है कि कोई बच्चा अगर अपना स्टार्टअप लगाना चाहता है एंड इफ ही इज वेल टू डू इन दैट स्टार्टअप, तो हम उसकी मदद करेंगे। वाओ, ओके, तो ये उसकी जर्नी बन जाएगी। और इसी का रिजल्ट है कि लगभग हम आज की डेट में 80 से ज्यादा स्टार्टअप खड़े कर चुके हैं। 80 से ज्यादा स्टार्टअप हम खड़े कर चुके हैं, और इस 80 से ज्यादा स्टार्टअप को 1 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग भी मिल चुकी है। वंडरफुल, वाओ, Right? So this is how we have created this venture vault ecosystem for this startup. Actually, to achieve the vision given by our Prime Minister Narendra Modi ji, Viksit Bharat 2047. wow, that is honestly amazing कि just ये incubation center नहीं है, but you are seeing some real world outputs from this as well. Yes. ना कि just मतलब I mean a lot of universities have come on this bandwagon, but यहाँ पे we are already seeing startups being nourished by this. Yes. That's wonderful, sir. सर, आई डिड वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि मतलब हमने काफ़ी सारी बात कर ली है रिगार्डिंग एजुकेशन एंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स दैट यू हैव बिल्ड अराउंड इट, हाउ यू आर प्रोवाइडिंग द फ्यूचर। नाउ ऑफ कोर्स ये चीज़ें पेरेंट्स को सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के लिए भी जो पढ़ना चाह रहा है उसके लिए वंडरफुल है, बट देर इज़ वन ह्यूज एस्पेक्ट विच एवरी स्टूडेंट लुक्स फॉर, आई थिंक, कि वो है कि वो पहली बार एक होम ग्रोन एनवायरनमेंट 12th तक का स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा अब एक कॉलेज में जा रहा है, एक काइंड ऑफ एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस, बहुत सारा फन करने मिलेगा, बहुत सारे नए लोग मिलेंगे। सो इन दोज एस्पेक्ट्स हाउ आर यू हेल्पिंग स्टूडेंट्स have a more fun life, have a more exposed life? उनका जो activities है, fun and enjoyment activities, how are you catering to that side of the student over here? देखो, इसके अंदर सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम जो क्रिएट करते हैं वो थ्रू स्टूडेंट्स क्लब्स क्रिएट करते हैं। Okay. हमने क्या किया, देर आर 52 स्टूडेंट्स क्लब्स विच आर रनिंग इन दिस कैंपस। Okay. और ये क्लब कौन कौन से हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर है, Okay. स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी है, उसमें सेक क्लब है। ये सेक क्लब क्या करता है, दे आर ऑर्गेनाइजिंग वेरियस कल्चरल एक्टिविटी विद इन द कैंपस। Okay.
related to dancing, related to singing, related to theater, related to painting, related to clay modeling. There are thousands of activity they are organizing within the campus. Okay. Point number one. In the similar way, we are having sports clubs. And within the sports club, we are having boxing club, wushu club, badminton club, gym club. So there are various other clubs. So whatever students would like to wish to learn or to take the exposure, उस क्लब्स को ज्वाइन कर लेता है. In the similar way, we are having thousands of technical clubs as well. Number of technical clubs. AI क्लब है आपका, साइबर सिक्योरिटी को लेके क्लब है. तो बच्चे को ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट देने के लिए और हर क्लब का एक कैलेंडर बनता है पूरे साल का. ओके. कि दीज आर दी एक्टिविटीज गोइंग टू हैपन इन दिस क्लब. राइट. वो उसको फॉलो करता है और दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग द हैपनिंग एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारे पास बहुत सारे सिंगर्स भी आते हैं. जैसे जैस्मिन सैंडलेस अभी रिसेंटली आई थी, दर्शन रावल हमारे पास आए थे, अंकित तिवारी जी आए थे हमारे पास. तो बहुत सारे सिंगर्स आते रहते हैं बच्चों को शाम का मनोरंजन करने के लिए, उन बच्चों के लिए. तो लॉट ऑफ एक्टिविटीज गोइंग टू हैपन. मैंने आपको एक बॉक्सिंग क्लब है हमारे यहाँ जो नाइट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की थी, उन्होंने बॉक्सिंग नाइट उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी. तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटी व्हिच यूज्ड टू ऑर्गेनाइज विद इन द कैंपस. तो बच्चे एंजॉय भी करते हैं, लर्न भी करते हैं और जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसके आगे भी बढ़ सकते हैं. राइट. तो सर जनरली मैंने देखा है कि यू नो रिगार्डलेस कि स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड में डिग्री कर रहा है या ह्यूमैनिटीज़ में कर रहा है, स्टूडेंट क्लब्स आर वन प्लेस जहाँ पे उनको मतलब इंटरकनेक्ट, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट सिंगिंग भी कर रहा है, वो गिटार भी बजा रहा है. तो दीज आर ग्रेट वेज फॉर पीपल टू इंटरमिंगल अमंग्स अदर डिग्री के बच्चों के साथ भी और अपने खुद के इंटरेस्ट को भी एक्सप्लोर करने के लिए. सर हर कॉलेज में आई गेस एक क्या कहते हैं, एक फ्लैगशिप इवेंट जैसा होता है. तो आपके यहाँ पे ऐसा कोई इवेंट है जो हर साल होता है और बहुत ही यू नो बिग इवेंट? बहुत सारे इवेंट ऐसे जैसे एक साहित्यम करके होता है, लिटरेरी फेस्टिवल है. ये अपने आप में एक फेस्टिवल है. इसमें बहुत सारे लिटरेचर से संबंधित लोगों को हम इनवाइट करते हैं यहाँ पे एंड दे हैंड होल्डिंग टू द स्टूडेंट्स और बहुत सारा अपनी बुक्स पब्लिश है. अगर मैं पिछले साहित्यम की बात करूँ, उस साहित्यम के दौरान लगभग 60 बुक्स बच्चों की हमने रिलीज की थी सिंगल डे पे. वाह. यानी कि बच्चे जो पोइम लिखना चाहते हैं, जो अपनी बुक्स रिलीज करना चाहते हैं, चाहे पढ़ वो इंजीनियरिंग रहा है, चाहे वो लॉ पढ़ रहा है, चाहे वो फार्मेसी पढ़ रहा है, बट दे आर ऑथर्स विद इन द स्टूडेंट्स. इसी तरह एक विस्तोसो क्लब है. विस्तोसो में बाहर से हम मतलब सिंगर्स या डांसर्स को इन्वाइट करते हैं, वेरियस ट्रूप्स को इन्वाइट करते हैं. वी सेलिब्रेट द डे थ्रू वेरियस एक्टिविटी. नेशनल साइंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं. अपना ग्लोबल एजुकेशन कनक्लेव अभी कल होने जा रहा है, टुमारो इट इज गोइंग टू स्टार्ट. सो वेर इन 100+ इंटरनेशनल डेलीगेट विल कम टू द कैंपस. ये हर साल हमारे यहाँ इवेंट होता है. इंटरनेशनल टीचिंग एक्सेलेंस प्रोग्राम ITEP वी आर सेलिब्रेटिंग. Okay, right? Orientation day we are celebrating. So there are multiple events which we are organizing within the campus और बहुत सारे flagship events हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं. That's amazing. मतलब generally students इन चीज़ों को लेकर बहुत ही excited रहते हैं. They want to participate. They want कि उनके कॉलेज में ऐसा कुछ हो ताकि वो engaged रहे. So that's wonderful that you have this. Sir, moving on, I think we've covered a lot. So any potential student who wants to, you know, is looking for a college, they could certainly check it out कि ये university के पास जो है क्या वो उनके interest के साथ align कर रहा है? Do they see themselves here? So with that, sir, would you have any, you know, last parting remarks कि जो हमारे शायद parents या students ये video देख रहे हैं कि आप उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो देखो, मैं पेरेंट्स और बच्चों को बस एक ही संदेश देना चाहूँगा. ये जो CGS यूनिवर्सिटी मोहाली कैंपस है, ये कैंपस नहीं है. इनफैक्ट ये आपका ऐसा स्थान है जहाँ पे आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आ सकते हो. मैं अपने पूरे कन्वर्सेशन के दौरान बताया है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना चाहते हैं. जिस भी ड्रीम के साथ इस कैंपस में आएंगे, ये कैंपस आपके उस ड्रीम को पूरा करने के लिए इकोसिस्टम डिज़ाइन करता है और उस इकोसिस्टम के थ्रू एज ए नेचुरल प्रोडक्ट आप एक सक्सेसफुल आदमी के रूप में निकलते हो. और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है. पूरा मैनेजमेंट, पूरा टीचिंग फैकल्टी, पूरा
इकोसिस्टम वो इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि जो बच्चा मेरे कैंपस के अंदर आ रहा है मैं कैसे उस बच्चे के सपना पूरे करने में मदद कर सकता हूं मैं। विद दिस नोट आई थैंक यू। आई थिंक Thank you so much, sir, for joining us. That was Dr. Vinay Goel, the Vice Chancellor of Chandigarh Group of Colleges University now, Mohali. Thank you so much, sir. Thanks for joining us. थैंक यू।